کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے، اور سنا ہے چینی ایک تو 10 روپے کلو ہو گئی، آٹا 70 روپے کلو تک جا پہنچا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں کہ روٹی 30 روپے کی بیچنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سارا دن محنت کرنے کے بعد 1 منٹ کش 2 وقت 2 روٹیاں بھی کھائے، یعنی 2 وقت صبح دوپہر اور شام اگر 2 روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 3600 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر گھر میں 6 افراد ہوں جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں تو صرف روٹی پر اور کچھ نہیں، روٹی پر 21,000 روپیہ وہ کہاں سے لائے؟ چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کے اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ غربت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ اور کیوں مہنگائی بے قابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے؟ کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں 5.8% کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے؟ کیوں سڑکیں، شاہراہیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی؟ کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی ضرورت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز۔ آئین اور قانون
उन मुट्ठी भर लोगों के मजमूम अज़ाइम के आड़े आते हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए डुबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली। तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाअहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने एक पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल न उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाइयों और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तून अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबराकर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरीम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस बस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला इखलाकी दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये सियातरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है। यहां रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है। इस गैर आईनी, गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि यह गैर कानूनी शिकंजा रहेगा,
میرے بھائیوں بہنوں، آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، ایک خود مختار صوبہ ہے، وہاں ایک منتخب حکومت ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے، لیکن اس کارروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی جی پولیس کو اغوا کیا، کس نے ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کیا۔ پولیس کے سربراہ اور اعلیٰ افسروں کو اٹھا کر لے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ سیکٹر کمانڈر کون ہے؟ وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے؟ کس کے حکم پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے؟ کس کے حکم پر بیڈ روم کے دروازے توڑے جاتے ہیں؟ اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے؟ میرے دوستوں، ای ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے، ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف، اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں، بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف، نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں، وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان سے معصومیت میں، انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے، میری فوج کی وردی پر نہ لگے۔ ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں بچ، لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟
ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 19 मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। हाँ, मैं उन लोगों को बरी और जिम्मा करार नहीं दूंगा जिन्होंने खिलाफ कानून ऑर्डर्स की तामील की, जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के जंगलों को दांगे, जिन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके एक नाजायज फौजी हुकूमत की राह हमवार की, गैर कानूनी हुक्म की तामील करके वो भी उतने ही बड़े मुजरिम साबित हुए जितना के हुक्म देने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहब्बे वतन अकबर बुट्टी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के जिम्मेदार भी यही लोग। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। परवेज मुशर्रफ के साथी अकाउंटों में अरबों रुपया कैश पड़ा हुआ है, इसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन नैब या इमरान खान किसी में जरूरत नहीं कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी तरह हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने के लिए धरने करवाए, इंतखाबात में धांधली करवाई और एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करने का फैसला भी फौज के इदारे का नहीं था। यह फैसला फौज का नहीं था, बल्कि चंद किरदारों का था। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूं ताकि तबाही और बर्बादी के इल्जाम की छींटे मेरी फौज के जवानों और अफसरों की वर्दी पर न पड़े। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान न्याजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है और आपको इस कौम को महंगाई, गुर्बत और फाका कशी की तरफ धकेलने का भी हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की। क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इलेक्शन हो जाने तक
जेल में रखने की दरख्वास्त की, वो कौन सी 2 साल की आपकी मेहनत थी जो नवाज शरीफ को रिहा करने की सूरत में जाये हो जाने का अंदेशा था? बताइए, आपने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को रिहा किया। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था, क्यों आपने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी न सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको आईएसआई के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरखास्त सुन न सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल साहब। ये आपके हर्ष तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है, एक। आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। अगर यही वक्त आपने पेशा वाराना दिफाई अमूर पर सर्फ किया होता तो हमारे कश्मीरी बहन भाई कभी इन मसाइब से दो चार ना होते जिनसे वो आज दो चार हैं। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला तैयार चलाने वालों के साथ है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदगुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें समाज पाक में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की बनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बढ़ के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं आज 3 पैगाम देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम। ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेक नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है, वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त होने के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहां आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। अपने हल्फ की पासदारी कीजिए, खुद को मुतनाज़ा होने से बचाइए।
सिविल सर्विस के नाम है। जमाना बदल रहा है, किसी के लिए कानून की आइन तोड़कर बच निकलना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। आपने देखा कि सिंध पुलिस के अफसरान ने चंद लोगों के गैर कानूनी रवैयों पर एहतजाज करके न सिर्फ उनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए, बल्कि अपने लिए इज्जत भी कमाई। सिंध के पुलिस अफसर साहिबान, मैं आपको सलूट करता हूं। आपको बला खौफ अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक अदा करनी चाहिए। मैं सब सिविल सर्वेंट्स को ये मैं गुजारिश कर रहा हूं और किसी दबाव में आए बगैर सरअंजाम देनी चाहिए। और तीसरा पैगाम मेरा आवाम के नाम है। मेरे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी फौज आपकी अपनी फौज है। उनको इज्जत दीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, लेकिन जब मामला आइन की बालादस्ती का हो, जब आइन की बालादस्ती का मामला आ जाए, जब मामला कानून की हुक्मरानी पर आ जाए, तो फिर वहां कोई समझौता न कीजिए। कोई फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। पुरअमन एहतजाज आपका आईनी हक है, जिससे आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। आजादी इजहार आपका आईनी हक है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वोट और हुकूमत साजी आपका बुनियादी हक है। जो आपके इस हक को छीने, वो आपका हाल और मुस्तकबिल आपसे छीनने का मुर्तकिब होता है। वो आमिर है, गासिब है, अनशिकन है। आप अपने हक को इस्तेमाल कीजिए। किसी मुफाद परस्त टोले या कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपनी आने वाली नस्लों की तब्दील के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत मत दीजिए। अगर आज आपने अपने हकूक को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, तो इंशाअल्लाह आप अपने हालात संवार देंगे। तो फिर उभारने का कोई फायदा नहीं होगा। कोयटा वालों, इमरान खान की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम उन तमाम लोगों से जवाब तलब करें जिन्होंने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके आपको इन हालात से दो-चार किया है। बेटा वालों, सोच कर बताओ, क्योंकि पूरा मुल्क आपकी आवाज सुन रहा है। क्या तुम इस जदोजहद में नवाज शरीफ का साथ दोगे? क्या तुम इस जदोजहद में पीडीएम का साथ दोगे? क्या इस जदोजहद में हम सबका साथ दोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।